روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ جی ناظرین، میں آپ کی میزبان سیری شروفن پروگرام کلام کی روشنی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں ہم نے مکاشفہ کی کتاب کی سیریز کا آغاز کیا ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے افسس کی کلیسیا کے بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ سیکھا، جانا اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کیا۔ آج اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے ہم اور باتوں کو سیکھیں گے، جانیں گے اور ان باتوں سے استفادہ حاصل کریں گے۔ آج ایک بار پھر میرے ساتھ محترم عالی جناب پادری عزیز انور صاحب ہیں۔ پادری صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ سہرش کہ آپ نے دوبارہ یہ پروگرام کا آغاز کیا۔ میں اس کے لیے خداوند کا اور آپ کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ جی خداوند کا شکر ہو۔ پادری صاحب، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے افسس کی کلیسیا کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، اور جو کہ ایک سوال سا وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا تھا کہ ہم زیادہ ان باتوں کو سیکھتے، لیکن آج اسی سوال کو میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گی کہ خداوند یسوع المسیح نے جب افسس کی کلیسیا کو خط لکھوایا ہے یوحنا کی بابت، تو اس میں لکھا ہے کہ مجھے تو اس سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پہلی سی محبت کون سی محبت ہے، اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ہاں، بہت شکریہ، بہت اچھی بات کی آپ نے، کیونکہ کسی شخص نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا وقت رکھتا ہے کہ وہ بائبل کی 66 کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتا، جی تو یسایہ کے 66 ابواب کا مطالعہ کر لے، صحیح، تو بائبل کی 66 کتابوں سے واقعی وہ اختصار کے ساتھ ہی صحیح لیکن مکمل واقفیت پاتا ہے۔ صحیح، اب کئی لوگ اور بھی بڑے بزی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، نہیں، تو ان کے بارے میں اس شخص نے لکھا ہے کہ اگر ان کے پاس 66 ابواب پڑھنے کا وقت نہیں ہے، 66 کتابیں تو دور کی بات ہے، جی اگر 66 ابواب پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو پھر وہ ایک باب کا مطالعہ کر لیں، اور وہ ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب، جس میں لکھا ہے کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں صحیح اور محبت نہ رکھوں۔ بڑی غور طلب بات ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹناتا پیتل یا جھنجھناتی جھاج۔ اور اگر مجھے نبوت ملے، یہ نبوت کتاب ہے بائبل، 66 کتابیں میری نظر میں نبوت کی کتابیں ہیں، بالکل، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب باتوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دو اور محبت نہ رکھوں، تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اگر وہ ایک باب ہی نہیں پڑھ سکتا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ وہ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت پڑھ لے۔ وہاں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور اگر اس شخص کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ وہ ایک باب کا مطالعہ کر سکے، تو ایک آیت کا مطالعہ کر لے، اور وہ ہے مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16ویں آیت۔ وہاں لکھا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب محبت کا جو نمونہ ہے ہمارے سامنے، جسے ہم ماڈل کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے لیے ایک نظریہ حیات ہے یا نظریہ محبت ہے، وہ خداوند نے خود سیٹ کیا ہے، کسی انسان کا قائم کردہ نہیں ہے، وہ خدا کا قائم کردہ ہے۔ اور وہ نظریہ کیا ہے کہ جس سے وہ پیار کرتا ہے
اس کے لیے اپنی گود بھی خالی کر دیتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی دے دیتا ہے۔ یہ محبت کا وہ معیار ہے جسے خداوند نے قائم کیا ہے، اور ابتدا سے آج تک اور آنے والی زندگی تک اس معیار میں نہ کبھی کوئی تبدیلی آئی ہے اور نہ کبھی کوئی تبدیلی آئے گی۔ جی، یہی بات افسس کی کلیسیا کے ساتھ تھی کہ مقدس پولس نے وہاں جب کلیسیا کو قائم کیا تو وہ سب کے سب ایماندار تو تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ کانورٹ سے، وہ دوسرے مذاہب سے، یہودیوں سے، بت پرستوں سے، یونانیوں سے، رومیوں سے وہ مسیحی ہوئے تھے۔ ایک بڑی زندہ مضبوط کلیسیا تھی جس کی بنیاد عقائد کے ساتھ عقائد کو جنم دینے والے خداوند یسوع اور اس کی کلیسیا سے تھی۔ وہ محبت کرتے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یوحنا وہاں کھڑا ہوتا اور خدا کا بندہ، خدا کا رسول یہی کہتا ہے کہ جس طرح خدا نے ہم سے محبت کی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ جس کلیسیا کی بنیاد محبت پر قائم کی گئی ہے اس سے شکوہ بھی تو یہی ہو سکتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ جب ہم بائبل مقدس کے مطابق بات کرتے ہیں یا بائبل مقدس میں محبت کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس کی جو ڈیفینیشن جو عام خدا کے کلام کے طالب علم دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ محبت وہ باطنی جذبہ ہے جس جذبے کے تحت محب جو ہے وہ محبوب کی ترقی، خوشحالی اور بہتری کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے بخوشی تیار ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر محبوب کے لیے اس کا محب کچھ کرنے کے سے قاصر ہے اور نہیں کر پاتا تو پھر اس کو محب کہنا ہی غلط ہے۔ اگر ایماندار یسوع کو پیار کرتے ہیں تو پھر ان کی محبت کا معیار وہ نہیں ہے جو وہ سوچتے ہیں۔ اگر سوچتے ہیں تو انہیں اپنے آپ کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو ری وزٹ کر کے اسے پھر ری شیپ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی محبت ہے جس کا گلہ افسس کی کلیسیا سے رسول یا مسیح یسوع کرتا ہے یا خداوند خدا کرتا ہے، اور جس کا گلہ آج کلیسیاؤں میں پایا جاتا ہے۔ وہ محبت کیا ہے؟ پہلی بات، محبت چھوڑ دی، اس کا مطلب تیری محبت اب خالص نہیں رہی، پیورٹی نہیں ہے، اب اس میں پیورٹی نہیں آ گئی۔ اس کا مطلب تیری محبت کی تقدیس جو ہے، سینکٹیٹی جو ہے، اس پر دبا آ گیا۔ تیری محبت کی پاکیزگی قائم نہیں رہی۔ کیوں؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ محبت کی پاکیزگی قائم نہیں ہے؟ اسی دور میں، جس دور میں مقدس پولس، مقدس پطرس، شاگرد رسول، مقدسہ مریم یہ سب زندہ تھے، اسی دور میں بہت سارے لوگ اس ایمان کے مخالف ہونے کے ناطے پیدا ہو گئے تھے۔ صحیح۔ یعنی دوسرے معنوں میں کہہ لو کہ بہت ساری بدعتوں نے جنم لے لیا تھا۔ اب ان بدعتوں کی وجہ سے لوگ محبت رکھتے ضرور تھے، ایمان رکھتے ضرور تھے، لیکن جو بدعتی لوگ تھے ان کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ صحیح۔ جبکہ محبت تو سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ اگر سہنا اور برداشت کرنا نہ ہوتا تو پھر خدا کیسے ایک گناہ گار کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیتا؟ اور یہی محبت کلیسیاؤں میں
उस वक्त भी खुदावंद चाहता था और आज भी चाहता था कि कलीसिया अपने इंतज़ामी ढांचे में कई दफ़ा हम इंतज़ामी तौर पर इतने आगे बढ़ जाते हैं कि मसीही मोहब्बत जो है वो मफकूद हो जाती है। हम कहते हैं जी नहीं, इसने यही किया है, इसकी यही सज़ा है, हम जज बन जाते हैं। इफिसस की कलीसिया में ये हो रहा था। जिसको खुदावंद यीशु ने कहा तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। दूसरी बात, बेरहराव हो जाना, जिसे बरगश्ता कहते हैं, बरगश्ता हो जाना। अब आप कभी गौर करें, करंथस की कलीसिया को और इफिसस की कलीसिया को, सिर्फ 2 कलीसियाएं ऐसी हैं जिनको खुदावंद के खादम मुकद्दस पौलुस ने क्लियरली लिखा है कि औरतें, ख़वातीन जो हैं वो कलीसिया के बजवे में खामोश रहें। बाकी को क्यों नहीं लिखा? बाकी उसने 14 खतूत लिखे हैं जी। 12 को क्यों नहीं लिखा? उसने 2 को क्यों लिखा? यहाँ डायना देवी का मंदिर था, सही, जिसकी वजह से ख़वातीन उस सारी हालत से वाकिफ थे और उस दलदल से खुदावंद के पास आए थे जी। करंथस में पोसाइडन देवता का मंदिर था और उस देवता को मानने वाली ख़वातीन खुदावंद की कलीसिया में शामिल हुई थी और जो उनका माजी था उस माजी को और मसीही इत्तेकाद को वो साथ लेकर चलना चाहती थी। अच्छा। इसलिए खुदावंद के बंदे ने उनसे कहा कि कलीसिया के मजमा में यानी इबादत में खामोश रहें, और जगह नहीं लिखा। हालांकि कनखरिया की कलीसिया की पासबान फीबे थी और उसको पौलुस ने ही मुकर्रर किया था जी। मकसद ये है, जहां लोग बरगश्ता हो जाते हैं वहां मोहब्बत मर जाती है। और मोहब्बत के लिए, बरगश्तगी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो अपोस्टेसिया है। अपोस्टेसिया का मतलब है राह से गुमराह हो जाना। राह क्या है? खुदावंद यीशु। राह क्या है? खुदा का कलाम। राह क्या है? आपका ईमान, आपकी मोहब्बत। मसीह यीशु के सिवा और कोई दूसरी राह नहीं है। बेशक। तो जब लोग उस राह से हट जाते हैं, उनके पास बड़ी रीजंस है, बड़ी वजूहात है, बड़ी जस्टिफिकेशन है। आज भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। इसलिए मसीह खुदावंद ने गिला किया कि मुझे तो इससे एक शिकायत है। शिकायत क्या है? कि तूने पहली सी मोहब्बत को छोड़कर दुनियादारी के कवानीन और मैनेजरियल जो तेरी बातें हैं उनको अपना लिया है। इससे मोहब्बत मर गई है और देख तू कहाँ से गिरा है। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया। और कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है ना कि बेदीनी के बढ़ जाने से लोगों के दिलों की मोहब्बतें ठंडी पड़ जाएंगी। तो आज ऐसा ही हो रहा है कि दिलों की मोहब्बतें ठंडी पड़ गई हैं। उस तौर से वो प्योरिटी नज़र नहीं आ रही, उस तौर से वो पाकीज़गी नज़र नहीं आ रही, जिसके सबब से उनको शायद वो बरकतें भी नहीं मिलती या वो मुकाम नहीं मिलता जहाँ खुदा उनको रखना चाहता है। तो यकीनन नाज़रीन आपने इस सवाल से बड़ी बरकत पाई होगी। अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, क्या ये मुमकिन है कि मसीही हमारी वो तमाम मुसीबतों को जो हम उसके नाम की खातिर बर्दाश्त करते हैं और बदकारी के काम भी नहीं करते, इसके बावजूद वो हमसे हमारे मुकाम को छीन ले? ये भी तकलीफ दे बात है कि इसके बारे में ज़रूर बताएं कि ये कैसे मुमकिन है। आज की कलीसिया किस तरह से ऐसे खतरात से दो चार है, इसके बारे में बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि कैसे लोग उस मुकाम से गिर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक जायज़ और बड़ी खूबसूरत बात है कि पौलुस ने उस कलीसिया को कायम किया जी। परसिकला, अकूला, तिमोथियस, मुकद्दस यूहन्ना रसूल, मुकद्दस मरियम, अपुल्लोस जैसे लोग या रहनुमा वहाँ पर थे जी। पर वो गिर गई।
मुकाम से गिर गए। मुकाम क्या था जी कि खुदावंद ने उन्हें अपनी महबूबा होने का रुतबा दिया था, सही क्योंकि वो रुतबा बेरहरवी का शिकार हो गया था। उसमें मैंने पहले बताया कि जो खालिसन मोहब्बत थी, अब उस पर दाग आ गया था। आ गया क्योंकि दाग आ गया था, इसलिए वो कलीसिया अपने मकाम से गिर गई। मैंने आपको बताया कि ये खत 60 ईस्वी में उनको लिखा गया। इफिसस की कलीसिया को पहला जो खत इफिसस की कलीसिया को लिखा गया वो पौलुस ने 60 ईस्वी में लिखा। ये जो खत है ये 95 में लिखा गया। सही 35 साल तक ये बातें चलती रही और फिर खुदावंद ने कहा बस ख्याल करके तू कहाँ से गिरा, पहले की तरह काम कर, तौबा कर और पहले की तरह काम कर, वरना मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अब 95 में ये बात हो रही है, 60 में मोहब्बत की शोहरत है, 95 में पहली सी मोहब्बत जाती रही है और 262 ईस्वी में इफिसस शहर और कलीसिया और चर्चेस और वो मंजर गाथ कबीले ने आग लगा दी और सफाई हस्ती से मिट गए। आप 95 से लगा लें, 95 ईस्वी से लेकर 252 ईस्वी तक खुदावंद का इंतजार करता रहा कि वापस आ जाए। होसी में के सहीफे में खुदावंद कहता है वापस आ जा, मैं तुझे कैसे छोड़ दूं, मैंने तेरा फिदिया दिया है, मैंने तुझसे मोहब्बत रखी है। तो 95 से 252 ईस्वी तक वो मुसरफ बेटे की बाप की तरह इंतजार करता रहा। सही और फिर जब वो वापस नहीं आए और उन्होंने अपना मुकाम नहीं पहचाना, तो फिर 252 ईस्वी में गाथ कबीले ने वहाँ के चर्च, कलीसियाएं, शहर, मंदिर, डियाना देवी का मंदिर, ये सब, क्योंकि वहाँ पर कैसर रोम का भी मंदिर था और दुमितियान का तो बाकायदा बुत रस्म था जिसके आगे लोग गिरकर सजदा करते थे और उसको अपना खुदा मानते थे। सब कुछ तहस नहस कर दिया और आज उसने तौबा नहीं की, वो वापस नहीं आए, वो उन्होंने ये ख्याल नहीं किया, अपना मुकाम दोबारा हासिल नहीं किया, रियासत वापस नहीं की, तौबा नहीं की। आज वहाँ एक गांव मौजूद है, आज 2022 पे उस गांव का नाम आलोक अयास है, तुर्की में। वो गांव आज भी मौजूद है और वो गांव कम और मिट्टी का ढेर ज्यादा है। वहाँ निशानी तो खड़ी है। लूत की बीवी को फरिश्ते ने कहा था कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, उसने देखा। आज भी उसी राह पर अगर जिंदगी में कभी खुदा ऐसा मुमकिन कर दे कि हम वहां जाएं, तो वो नमक का सतून आज भी खड़ा है। वो बीवी नहीं खड़ी, वो औरत नहीं खड़ी, अच्छा, जिसका हाथ फरिश्ते के हाथ में था, क्योंकि 2 फरिश्ते लेकर भाग रहे थे ना। सही 4 लोग थे, अपना लूत, उसकी बीवी और उसके बेटियां। तो दोनों फरिश्तों के हाथ में, दोनों का एक एक हाथ तो होगा ना। सही। उस खातून का हाथ भी फरिश्ते के हाथ में था, पर उसने पीछे मुड़कर देखा जब उसने अपना मुकाम नहीं पहचाना। अब कितनी अजीब बात है कि हाथ फरिश्ते के हाथ में हो और लोग फिर भी बेरारा हो जाए, बदकार हो जाए, दुनियादार हो जाए, दुनिया से मोहब्बत करने लग पड़े, खुदा से बेवफा हो जाए, ईमान से बेवफा हो जाए, मोहब्बत से बेवफा हो जाए। यही हाल इफिसस के साथ हुआ और आज आलोक अयास के नाम से वो गांव वहाँ मौजूद है, जहाँ चंद लोग, चंद
लोग रहते हैं जिन्हें आप मसीही कलीसिया भी नहीं कह सकते। सही। मैंने देखा है आज काफ़ी खादिम उस जगह का सर्वे करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी नज़र नहीं आता कि कोई बस्ती वहाँ पर है या वहाँ पर कुछ खाली खाली सब कुछ लग रहा होता है। तो यकीनन नाज़रीन, आपने इस सवाल से बड़ी बरकत पाई होगी। बड़ी खूबसूरती के साथ इफसस शहर के बारे में खुदा के खादिम ने बताया है। चूँकि वक्त हमें इतनी इजाज़त नहीं दे रहा और बातें कर सकें, तो अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। हम अपने कामों से बदी पर गालिब आते हैं या खुदा के फजल से? ये गालिब आना क्या है, इसके बारे में बताएं। हाँ जी, बहुत बहुत ज़बरदस्त बात आपने की, क्योंकि लोग इस सच्चाई के बारे इब्तदा से ही से आज भी उसी तरह से उनके पास बड़े बड़े सवाल हैं जी। और वो अपने अपने अकायद और डॉक्ट्रिन रखते हैं जी। मेरे साथ एक शख्स बात कर रहा था, तो कहने लगा जी हम ज़बूर गाते हैं, फजल आए रब बख्श गुनाह सब मेरे। तो कहने लगा क्या आज इस दौर में जब हमने खुदावंद यीशु को कबूल कर लिया है, तो क्या ज़रूर ये ज़बूर गाने की अब हमें ज़रूरत है? वो तो उसने गुनाह तो मुआफ़ कर दिए हैं, अब तो हम ऑलरेडी निजात याफ्ता हैं। जी। तो मैंने उसको जो जवाब दिया वो अलग बात है, लेकिन आपके सवाल के से उसका चौके ताल्लुक मिलता है। पहली बात तो ये है कि कोई इंसान नेक नहीं हो सकता। जी। ये सादा सी बात है। सही। गुनाह की 4 किस्में हैं। ठीक। एक वो गुनाह है जो हम जुबान से कौल से करते हैं, उसे कौलन गुनाह कहा गया है। जी। और मुकद्दस याकूब कहते हैं कामल वो है जो बातों में खता ना करे। दूसरा है इरादतन, हम कुछ नहीं कर सकते पर इरादे तो कर सकते हैं ना। हम कमज़ोर हैं, हम वसाइल याफ्ता नहीं हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, पर हम मंसूबे तो बना सकते हैं। फिर एक फेलन है, कौलन, इरादतन और फेलन। हम अमली तौर पर तो बहुत सारे काम करते हैं जिन्हें आज के दौर के लोग ऐसे लोग हैं जो उनको गुनाह ही नहीं कहते। अब शराब नोशी को लोग गुनाह ही नहीं कहते। सही। हालांकि सादा सी बात लिखी है, कोई शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। अब लोगों के पास जस्टिफिकेशन क्या है कि जी यीशु ने काना गलील में तो मै बनाई थी। अब उनको ये नहीं पता कि मै में और शराब में फ़र्क क्या है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मै के लिए यूनानी का लफ्ज़ उइनास है, OINOS, और वो है अंगूर का जूस। शराब के लिए शीकार है, SHIKAR, शिकार। शिकार का जो मतलब है वो पानी जिसको पीकर इंसान अपनी अकल या विट खो दे। सही। जिसको इंग्लिश में कहा जाता है When the wine is in, the wit is out। हालांकि बाइबल मुकद्दस में खुदावंद अपनी ज़ुबान से मलाकी के सहीफे में कहता है मुझे इससे कराहियत है, अपनी जवानी की बीवी के साथ वफादार रहे। खुदावंद कहता है तेरा बिस्तर बेदाग रहे। वो कहता है मुझे इससे कराहियत है। मेरे पास और भी रूहें थी, अगर होती तो मैं एक से ज़्यादा बनाता, इसलिए बनाई कि तू उसके साथ ज़िंदगी के आखिरी सांस तक वफादार रहे और वो तेरे साथ। सही। आज लोग तलाक को कोई अहमियत नहीं देते। आज लोग घर टूट रहे हैं, नस्लें बर्बाद हो रही है, पासबान तक, बिशप्स तक लोग एक से ज़्यादा बीवियां रख रहे हैं और उनकी हैं, जबकि तिमोथियस में लिखा गया है कि खादम जो है, पासबान जो है, जो खुदा की खिदमत करता है, कलाम की खिदमत करता है, वो एक बीवी का शौहर। तो ये वो बदियाँ हैं
दरअसल जिनको लोग जो हैं वो बदी नहीं कहते और उनको वो समझते हैं कि ये हमारा एक सोशल स्टेटस है या सोशल प्रैक्टिस है, इसलिए वो कर रहे हैं। अब सवाल जो है ना वो ये बनता है कि ये तो है बाग अदन से शुरू हो गया है, गालिब कैसे आ सकते? और ये सबसे अहम बात है, आज लोग यही पूछ रहे हैं और आज लोग इसी से गाफिल है कि इन बदियों पर कैसे गालिब आया जा सकता है। हमारे पास बाइबल भरी पड़ी है जहाँ बदियों पर गालिब आने के को जो उसूल है या तरीका जो है वो बताया गया है। हमारा सबसे बड़ा मॉडल जो है या हमारी ज़िंदगी का जो मालिक है, जो हमारा निजात दहिंदा है, उसके बारे में इब्रानियों के ख़त में लिखा है कि वो इंसानों के दरमियान रहा, हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। इसका मतलब इंसान अगर जद्दोजहद करे तो वो बदी पर गालिब आ सकता है। इब्राहिम 99 बरस तक फॉर 99 ईयर्स खुदा के इस वादे पर कि मैं तुझे औलाद दूंगा, जो रेत के ज़र्रे और आसमान के सितारे इस किस्म के इस्तारे इस्तेमाल करके खुदावंद ने उसे बताया ऐसी औलाद होगी। 99 बरस तक इंतज़ार करता रहा। बदी पर गालिब आने का एक ही गुर है मेरे और आपके पास जो बाइबल में है, और वो है खुदा का कलाम, क्योंकि लिखा है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में, ज़बूर 119 में, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। आज भी लोग अगर कलाम को अपनी ज़िंदगी में पहला मुकाम और आखिरी मुकाम दे देंगे तो बदी पर तो क्या शैतान पर भी गालिब आ सकते। बेशक। थैंक यू पादरी साहब, बड़ी खूबसूरती के साथ आपने इस सवाल का जवाब दिया है। जिस तरह हम बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, पैदाइश की किताब में याकूब का बेटा यूसुफ, जिस तरह आपने बताया कि यीशु मसीह किस तरह बदी पर गालिब आए हैं, और भी नबियों के बारे में हम देखते हैं। तो जो मेन फोकस क्या है वो कलाम मुकद्दस ही है। जिसके अंदर कलाम होगा वो हर तरह की बदी पर गालिब आएगा। यकीनन नाज़रीन बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, मेरा ईमान है आपने बड़ी बरकत पाई होगी, लेकिन हमें वक्त इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और बातों को सीखें। अगले एपिसोड में हम और बातों को सीखेंगे। आज के इस एपिसोड में मुझे और पादरी साहब को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। आओ हम खुदावंद की रोशनी में चले।